Good morning, everyone. My name is Dr. Sahil Bagai. I am a senior consultant head nephrology and renal transplant medicine, Manesar. Every year on second Thursday of March, we celebrate World Kidney Day. And uh, I'll I'll take the opportunity to speak on diabetes and kidney health. And this is in similar lines to World Kidney Day, that I would wish to create awareness about the prevailing kidney health problems in diabetics. So can we have the slides, please? Yeah. So in today's talk, we will run through these topics. So we will talk about relevance of the talk, understanding the kidney health. We will try to learn and identify kidney diseases specifically related to diabetes, and then steps to promote kidney lifestyle changes. So kidney's role in the body, to sum up, we would say that kidney acts like a body filter. So as you use strainer in your house, or various filters which are used in house like AC filters and RO filters. So body filter also helps in removing waste products, and it removes extra water from the body. It helps to maintain blood pressure levels, keeps our bones healthy. Kidney has a instrumental role in building blood levels, that is maintaining your hemoglobin levels, and it balances minerals in our body. So medically, if I have to say that someone has renal dysfunction, I'll categorize the renal dysfunction into three types of injury: acute kidney injury, acute kidney disease, and chronic kidney disease. So the division or classification into these renal dysfunctions is based on the days of the injury. So if you have a injury which is for less than 7 days, we call it acute kidney injury. If someone has renal injury which happens which is older than 7 days but is less than 3 months old, we call it acute kidney disease. And the injury which is more than 3 months old usually is called chronic kidney disease. Acute kidney injury बहुत सारे केसेस में मोस्टली रिवर्सिबल होगी, एक्यूट किडनी डिजीज मोस्टली ट्रीटेबल रहेगी, और क्रॉनिक किडनी डिजीज मोस्टली मैनेजेबल रहेगी. When we talk about kidney disease and diabetes, more often than not, we will be referring to chronic kidney disease. So before I talk about how to identify disease, chronic kidney disease किसको कहते हैं ये हमें पता होना चाहिए. So kidney damage, if there is for 3 months or more, चाहे ये स्ट्रक्चरल हो या फंक्शनल एबनॉर्मेलिटी हो, उस केस में हम क्रॉनिक डिजीज किडनी डिजीज का लेबल लगा सकते हैं. हमारे साइंटिफिक लिटरेचर के हिसाब से इसके क्राइटेरियाज होते हैं. अगर 3 महीने से ज्यादा किसी के मार्कर्स ऑफ किडनी डैमेज एक से ज्यादा मिले, जैसे एल्ब्यूमिन यूरिया जो प्रोटीन में लॉस होता है 30 मिलीग्राम पर डे से ज्यादा, यूरिन सेडिमेंट एबनॉर्मेलिटीज हो, इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे सोडियम पोटेशियम इन सब का एबनॉर्मेलिटीज मिल रहा हो, अगर किसी की किडनी बायोप्सी करी जाए और उसमें प्रॉब्लम दर्शाई जाए, स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज अगर आपके नॉर्मल अल्ट्रासाउंड या सीटी इमेजिंग पे पिक हो जाए, या फिर किसी तरह से किडनी ट्रांसप्लांट किसी का रखा हो, तो ऐसे पेशेंट को आप क्राइटेरिया फॉर सीकेडी में वो सेटिस्फाई रहते हैं. एंड अगर हम जीएफआर की बात करें तो किसी भी पेशेंट का अगर जीएफआर 60 ml पर मिनट बॉडी सरफेस एरिया से 3 महीने से ज्यादा कम है, तो ऐसे पेशेंट को हम क्रॉनिक किडनी डिजीज की श्रेणी में रखेंगे. ये केडीगो की क्लासिफिकेशन के हिसाब से हम अपने किडनी पेशेंट्स को स्टेज करते हैं. सो लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखेंगे तो जी से G5 तक स्टेजिंग होती है. ये जीएफआर के नंबर के बेस पे स्टेजिंग होती है. सब G1 मतलब नॉर्मल या हाई है, जिसमें जीएफआर 90 के ऊपर है. ऐसे ही G2, G3A, G3B, G4, G5 ये सब स्टेजिंग होती है, और ये जीएफआर के नंबर के हिसाब से होती है. अगर हम जीएफआर की बात करें, जो अक्सर आप अपने केएफटी की रिपोर्ट में पढ़ते होंगे कि जीएफआर करके एक चीज मेंशन रहती है अधिकतर लेबोरेटरीज के द्वारा. तो जीएफआर रहता है कि आपकी जो किडनीज हैं वो आपके ब्लड को कितना फिल्टर करती हैं हर मिनट, उसको हम कहते हैं जीएफआर. और अगर आप राइट साइड पे देखेंगे तो यहाँ लिखा है A1, A2, A3. तो A1, A2, A3 दर्शाता है कि कितना एल्ब्यूमिन आपकी किडनी से निकल रहा है. A1 रहता है लेस देन 30 मिलीग्राम पर ग्राम, जो एक नॉर्मल लेवल है.
A2 होता है 30 to 300 मिलीग्राम्स पर ग्राम ऑफ क्रिएटिनिन, जिसको मॉडरेटली इंक्रीज्ड हम एल्ब्यूमिन यूरिया कहते हैं। और 300 से ज्यादा कोई भी एल्ब्यूमिन अगर यूरिन में निकल रहा है, हम उसको A3 का दर्जा देते हैं। अब बात आता है कि क्यों इस दिन पे हम डायबिटीज और किडनी हेल्थ के बारे में बात करना चाहते हैं। सो अगर आप यूएस का डेटा देखेंगे तो 1980 से 2010 तक का जो डेटा है, ये बताता है कि सबसे कॉमन जो किडनी बीमारी जिस डिजीज से हो रही है यूएस में, वो डायबिटीज है। उसके बाद हाइपरटेंशन है, उसके बाद कुछ किडनी के खुद के डिजीजेज जिसको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं, और कुछ सिस्ट रिलेटेड डिजीजेज, जिनसे यूएस के मेजर 4 कॉजेज हैं। जब यूएस जैसी हेल्थ इकोनॉमी, जो डेवलप्ड वर्ल्ड की हेल्थ इकोनॉमी है, वहां पे भी डायबिटीज से इतना न्यूसेंस हो सकता है। सो obviously India being a developing nation, the nuisance value of diabetes is going to be many folds higher. When we look at Indian population, so we know we have about 140 crores of Indian in population in total. As per WHO report, 17% prevalence है, तो 17% प्रचलन है हमारे क्रॉनिक किडनी डिजीज का। अगर हम इन्हीं आंकड़ों से अंदाजा लगाएं तो हम करीबन करीबन 24 करोड़ लोगों को किडनी का बीमारी होता देख सकते हैं इस देश में। और अगर हम डायबिटिक इंडिविजुअल्स की बात करते हैं, तो जैसे मैं अभी बात हुआ कि 140 करोड़ हम भारतीय हैं, और WHO रिपोर्ट के हिसाब से 70 मिलियन हम में से 2050 तक डायबिटिक हो जाएंगे। अगर इन्हीं नंबर्स को देखा जाए तो 40% लोगों को किडनी प्रॉब्लम निकलता है जिनको डायबिटीज है। तो उस हिसाब से भी 28 मिलियन नंबर हो जाता है जिनको किडनी प्रॉब्लम होने का डर रहेगा, जिनको डायबिटीज है आज। और अगर हम पिछले कुछ साइंटिफिक लिटरेचर से डेटा देखते हैं, तो 1990 से लेकर 2016 तक किडनी रिलेटेड डेथ्स इंडिया में ऑलमोस्ट डबल हो गई हैं। जहां पहले 6 लाख लोगों का डेथ हुआ था किडनी रिलेटेड डिसऑर्डर से, और ये नंबर शायद अंडर रिपोर्टेड है, बिकॉज दिस इज व्हाट हैज बीन ब्रॉट टू द मेडिकल अटेंशन। और अब ये नंबर 11.8 लाख हो गया 2016 में। सो कोई भी बीमारी अगर 20 साल में उससे डेथ होने वाली चीज डबल हो जाए, तो वो कोई डिजीज हल्के में नहीं लेना चाहिए। As of 2018, we have almost like 1,75,000 patients who are on regular maintenance dialysis. और 2010 के आंकड़ों के हिसाब से 2/3 लोग हमारे देश में आज भी बिना किसी डायलिसिस की एक भी सेशन कराए उनका डेथ हो जाता है। सो every one of us knows that with increase in average life expectancy, the number of deaths due to kidney disease in India are highest among low and middle income countries. So as I have been talking about the numbers, so the problem for India is that we are in plenty. जहाँ पे भी numbers का problem होगा, वहाँ पे health economy will be under strain always. And जो disease पिछले 20 साल में अपना death probability को डबल कर चुका है, so that disease obviously needs to be washed out with utmost careful attitude. और अगर हम गवर्नमेंट प्रिपेयर्डनेस की बात करते हैं, तो इन्हीं नंबर्स को देखते हुए जो हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में पॉलिसीज बनाते हैं, तो वो भी ये नंबर देखते हैं, उन्हें भी इस बात से चिंता रहता है कि सीकेडी का जो नंबर्स है वो बहुत स्पीड से बढ़ता जा रहा है हमारे कंट्री में। इसी उपलक्ष्य में 2016 में नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम लॉन्च किया गया। 2018 के आंकड़ों के हिसाब से 12,880 डायलिसिस स्टेशन इंडिया में स्टैब्लिश कर दिए गए थे। बट उसके बाद भी अगर हम बेयर मिनिमम फ्रीक्वेंसी डायलिसिस की ट्वाइस इन अ वीक रखते हैं, उसके हिसाब से भी हम सिर्फ 50,000 लोगों को ही सालाना डायलिसिस पे और रख पाएंगे। और इन्हीं हमारे बढ़ते नंबर्स की वजह से ऑलमोस्ट 13% लोग हमारे बिना जो डायलिसिस पे होते हैं, वो विद इन 1 ईयर उनका डेथ हो जाता है बिकॉज ऑफ पॉसिटी ऑफ द रिसोर्सेज। सो व्हेन वी सी दैट द गवर्नमेंट प्रिपेयर्डनेस इज not to the scale with which the problem is coming, जब हम देखते हैं कि एक यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस हमारे सेक्टर में अभी तक प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं है, जब हम देखते हैं कि राइजिंग पॉपुलेशन को काउंटर करने के लिए हमारे पास कोई इफेक्टिव स्ट्रेटजी नहीं है, तो ऐसे डार्क टाइम्स में हमें सिर्फ एक रे ऑफ होप मिलता है, जिसको हम प्रिवेंशन कह सकते हैं। जब आपको पता है कि आने वाले दिन मुश्किल हो सकते हैं, सो वी ऑल नो व्हेन देयर इज गोइंग टू बी अ वॉर अहेड, वी ऑल नीड प्रिपेयर्डनेस। बट अमेरिकन इंडिविजुअल जीन रोडनबेरी ने बड़े अच्छे तरीके से इस
समस्या को बताया था कि स्ट्रेंथ ऑफ द सिविलाइजेशन इज नॉट मेजर्ड बाय इट्स एबिलिटी टू फाइट वॉर्स बट रादर इट्स एबिलिटी टू प्रिवेंट देम, एंड द गोल्डन इडियम प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर वुड ऑलवेज होल्ड ट्रू। सो अब आते हैं कि अभी तक हमने बात किया कि सबसे पहला सवाल जो मैंने अपने प्रेजेंटेशन में था कि रेलेवेंस ऑफ टॉक क्या है। तो रेलेवेंस ऑफ टॉक हमने इसी बात से एस्टेब्लिश किया कि हमारा नंबर जितना ज़्यादा है पॉपुलेशन का, कि अगर माइनर परसेंटेज ऑफ प्रॉब्लम भी किसी डिजीज की रहेगी तो वो आपको प्लेंटी में दिखेगी। सीकेडी का प्रचलन 17% देखा गया है, उस हिसाब से वी आर टॉकिंग अबाउट 30 करोड़ ऑफ इंडिविजुअल जिनको प्रॉब्लम होने की संभावना है। अगर हम सिर्फ डायबिटिक इंडिविजुअल्स की बात करते हैं तो ऐसे कम से कम 2 करोड़ लोग होंगे जिनको डायबिटीज और सीकेडी दोनों बीमारियां होने का डर रहेगा। ऐसे लोग जब हमारे पास आते हैं तो उनको इनिशियली अर्ली इन लाइफ कोई सिम्टम प्रेजेंटेशन नहीं होता। किडनी बीमारी तभी आती है, किडनी बीमारी भी तभी पता चलती है जब गाड़ी स्टेशन से निकल जाती है और हमारे पेशेंट्स का प्रेजेंटेशन हमारे क्लिनिक्स में लेट होता है। तो अगर किसी मरीज को जिनको डायबिटीज रहता है, ब्लड प्रेशर रहता है, या जिनकी फैमिली हिस्ट्री रही है किडनी बीमारियों की, अगर उन्हें ऐसा लगता है कि वो जरूरत से ज्यादा थकने लग गए हैं, उन्हें लगता है कि उनका सांस फूलने लग गया है, अगर उन्हें लगता है कि खाना अच्छा खाना दिखने के बावजूद भी खाने का मन ना करे, या उनको ऐसा लगे कि अर्ली मॉर्निंग उनके फीट में स्वेलिंग हो या उनके पाँव उनके आईज के अराउंड स्वेलिंग हो, तो ये नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं बट ये हिंट करते हैं कि आपको अपने फिजिशियन से या अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से एक बार मिल लेना चाहिए। अब बात आता है कि कुछ ऐसे रिस्क ग्रुप्स हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिन पे ये चीजें ज्यादा लागू होती हैं। सो जिन भी पेशेंट्स को मधुमेह डायबिटीज का बीमारी है उनमें से 1/3 पेशेंट्स किडनी पेशेंट्स इवेंचुअली बन जाएंगे। अगर किसी पेशेंट को हाइपरटेंशन या रक्तचाप का बीमारी है, अगर किसी पेशेंट को ओबेसिटी या अधिकतम वजन होने का प्रॉब्लम, ड्रग अब्यूज का मतलब सिर्फ हम सिगरेट या अल्कोहल की बात नहीं करते। ड्रग अब्यूज मतलब अगर कोई पेन किलर्स बहुत अब्यूज करता है बहुत टाइम से, अगर कोई और दवाई है जो नेफ्रोटॉक्सिक होती है बट वो किसी वजह से वो मेडिकली उनको प्रिस्क्राइब थी बट वो उसको अधिक मात्रा में ले रहे हैं, तो उसको हम ड्रग अब्यूज के पोटेंशियल में रखते हैं। जेनेटिक कॉज या फेमिलियल कॉज और ऑटो इम्यून डिजीज अगर किसी को है तो उनको किडनी में प्रॉब्लम होने के रिस्क इस लाइफ में ज्यादा है। अब बात आता है कि अगर हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हम एट रिस्क हैं और अगर हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि हमारा किडनी आगे जाके संकट में हो सकता है, तो ऐसा क्या है जो हम अभी आज के दिनों में करें तो क्या हम उसको फ्यूचर में उसके रिजल्ट्स को रीप कर पाएंगे। सो थिंग्स टू डू में सबसे पहला आता है शुगर एंड बीपी कंट्रोल। सेकंड आता है कि आप अगर किसी ड्रग का अब्यूज कर रहे हैं तो उसका अवॉइड करिए उस ड्रग को अब्यूज करना। एनुअल रूटीन टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है कि हर 30 साल 35 साल 40 साल का इंसान अपना एनुअल रूटीन टेस्टिंग ज़रूर करे। और अगर किसी इंडिविजुअल को लगता है कि वो उस एट रिस्क वाली श्रेणी में आते हैं तो जो एनुअल टेस्टिंग है वो क्वार्टरली टेस्टिंग या सेमी एनुअल टेस्टिंग में कन्वर्ट हो जाती है। जब हम बात करेंगे कि क्या और करना चाहिए, सो ऑब्वियसली आप देखेंगे अगर इस पिक्चर में तो बना रहे हैं कि बैलेंस फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंडिविजुअल। फिजिकल एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। क्विटिंग ऑफ स्मोकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाइड्रेशन लेवल किसी को बहुत जरूरी है अपना अच्छे से रखना। और अगर हम बात करते हैं कि कॉमन क्वेश्चंस क्या नेफ्रोलॉजिस्ट से पूछे जाते हैं जब आपको एक पेशेंट हमारे क्लिनिक पे आता है, सो जब रिपोर्ट खराब मिलता है, जैसे मैंने बताया कि इनिशियली अर्ली स्टेजेस में किसी को कोई डिजीज किडनी की बीमारी का सिम्टम नहीं रहता। सो किडनी जेनरस ऑर्गन होता है, काफी टाइम तक वियर एंड टीयर सहता है। जब वियर एंड टीयर एक लेवल के आगे चला जाता है तब आपके सिम्टम्स आते हैं और आपकी रिपोर्ट्स खराब होनी शुरू हो जाती है। सो बहुत सारे पेशेंट जब हमारे क्लिनिक्स में आते हैं जो अर्ली डिजीज वाले पेशेंट्स होते हैं जिनको अपनी रिपोर्ट खराब दिखी, तो उनका पहला डिनायल फेज रहता है। तो वो अक्सर हमसे ये पूछते हैं, डॉक्टर आर यू वेरी श्योर कि मुझे किडनी डिजीज हो सकता है, कि मुझे तो कोई सिम्टम ही नहीं है। तो मैं एक बार फिर से इस बात का रिहाइड्रेशन करना चाहूंगा कि आपके सिम्टम्स के बेसिस पे आप किडनी बीमारी को ना जज करिए। आप सिर्फ एनुअल टेस्टिंग पे, एनुअल यूरिन टेस्टिंग पे ही आप अर्ली किडनी डिजीज का पता लगा सकते हैं। सेकंड बहुत कॉमन क्वेश्चन जो बहुत सारे पेशेंट्स एड्रेस करते हैं डिसबिलीफ में, तो उनका ऐसा कहना है, हाउ कैन आई हैव अ किडनी डिजीज, आई हैव नेवर स्मोक्ड और ड्रैंक अल्कोहल इन माय लाइफ डॉक्टर। सो मैं फिर से यही इस बात पे स्ट्रेस करना चाहूंगा कि स्मोकिंग एंड अल्कोहल आर रिस्क फैक्टर्स टू वेरियस डिजीजेस, बट सिर्फ स्मोकिंग और अल्कोहल ही हर बीमारी के कारण नहीं होता। जैसे मैंने बताया कि रक्तचाप होना, मधुमेह होना,
ओबेसिटी होना, आपके फैमिली हिस्ट्री होना, आपके जीन्स के इन्वॉल्वमेंट, आपका ऑटो इम्यून डिजीज का होना, ये सारे आपके रिस्क फैक्टर्स को इंक्रीज करते हैं। सो अगर किसी को इन रिस्क फैक्टर्स में से कोई भी फैक्टर उनको लगता है वो इनहेरिट करते हैं अपनी फैमिली से, या कोई डिजीज ऐसा उनको पता है जो जिससे वो ग्रस्त है, सो उनका अपना एनुअल चेकिंग उनका जरूर होना चाहिए। और अगर उनको एट रिस्क पॉपुलेशन में आ चुके हैं तो उनका सेमी एनुअल या क्वार्टरली टेस्टिंग ऑफ द ब्लड टेस्ट जरूर होना चाहिए। अक्सर हम किसी हेल्दी इंडिविजुअल से मिलते हैं, तो उनका पहला कहना होता है, जिनको हम हेल्थ के बारे में encourage करेंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में, तो उनका कहना रहेगा, आई नेवर हैड किडनी डिजीज इन माय लाइफ टिल डेट, व्हाई शुड आई गेट एन एनुअल एग्जामिनेशन, आई एम टू यंग फॉर एनी डिजीज। सो आज हम ये सब जानते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस में, वर्क इतने स्ट्रेस में, देयर इज नथिंग कॉल्ड एब्सोल्यूट हेल्दी लाइफस्टाइल। सो एज इज जस्ट अ नंबर, 30 ईयर्स, 35 ईयर्स, 40 ईयर्स। अब हमने रोजाना हम देखते हैं न्यूज़पेपर्स में कि 30-35 ईयर्स, इवन लेस देन 10 ईयर्स के इंडिविजुअल्स को भी हार्ट प्रॉब्लम्स हुआ और उनका भी डेथ हुआ। सो सिर्फ ये कह देना कि आई एम टू यंग इन द फैमिली, मुझे कैसे डिजीज हो सकता है, दैट डजंट होल्ड ट्रू। आई वुड स्टिल रिक्वेस्ट एवरीवन कि अगर आप मोर देन 30 ईयर्स, मोर देन 35 ईयर्स, मोर देन 40 ईयर्स का आपका एज है, तो एनुअल टेस्टिंग शुड बी एम्फसाइज्ड बाय एवरीवन। अगर आपके पेरेंट्स हैं जो अपना एनुअल टेस्टिंग नहीं कराते हैं, तो प्लीज मेक इट अ पॉइंट दैट दे शुड बी पुश्ड फॉर एनुअल टेस्टिंग। एनुअल टेस्टिंग, रूटीन टेस्टिंग, सीबीसी, केएफटीज, एलएफटीज, लिपिड प्रोफाइल, शुगर के टेस्ट, HbA1c, फास्टिंग ब्लड शुगर्स, एंड स्पेसिफिकली किडनी स्पेसिफिक टेस्ट जैसे यूरिन प्रोटीन क्रिएटिनिन रेशियो एंड यूरिन एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशियो, जिनसे हम अर्ली किडनी बीमारियों का डिटेक्शन कर पाएंगे, वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है होने। और इन केस किसी को ऐसा लगे कि उनकी वैल्यूज आर नॉट इन सिंक विद द क्लिनिकल प्रेजेंटेशन दे हैव, उनको अपने डॉक्टर्स को, अपने नेफ्रोलॉजिस्ट को एट अर्लीस्ट मिल जाना चाहिए, क्योंकि हम फिर घूम फिर के वहीं आएंगे कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज गोइंग टू बी बेटर देन क्योर। So I will like to thank him, and in case there are any questions, I would be happy to address them. Thank you. So एक क्वेश्चन चैट बॉक्स में है, विच इज द बेस्ट टेस्ट टू नो द पोजीशन ऑफ द किडनी स्ट्रेंथ। सो किडनी की फंक्शनैलिटी का आपको सिर्फ किडनी फंक्शन टेस्ट में पता चलेगा, जिसमें हमारे कुछ पैरामीटर्स लाइक ब्लड यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन, इनका रेशियोज होते हैं, प्लस इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मेलिटी लाइक सोडियम पोटेशियम होते हैं। तो ये KFT एक इंटीग्रल टेस्ट है जिसमें जरूरत के सारे टेस्ट को क्लब किया जाता है, और ये यूनिवर्सल टेस्ट हर लैब सेंटर पे होता है। इसके साथ ही में प्रोटीन लॉस किडनी डिजीज का अर्लीस्ट साइन होता है। तो जब आप अपने ब्लड टेस्ट कराते हैं सालाना, उसमें आप एडिशनली यूरिन रूटीन का टेस्ट एंड यूरिन एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशियो का टेस्ट जरूर इम्बाइब कराइए, जिससे आपको फंक्शनैलिटी में किडनी का ओवरऑल स्ट्रेंथ एंड किडनी के फिल्टर का क्वालिटी ऑफ स्ट्रेंथ ठीक से पता चले। सो समिंग योर क्वेश्चन, urine albumin creatinine ratio, urine routine, and KFT test would be good enough to tell you how the kidney is functioning. So second question which I see on the chat box is the view on pelvic kidney. So जब भी हमारी जो किडनीज होती हैं हम उनको फ्लैंक में बोलते हैं, एंड दीज आर रेट्रोपेरिटोनियल बीन शेप्ड ऑर्गन्स। ये राजमा की तरह हमारे दो ऑर्गन्स होते हैं जो हमारे एब्डोमेन में बगल की तरफ लगे होते हैं। बट अगर बाई चांस देयर इज एन एनाटॉमिकल वेरिएशन और एक किडनी किसी का पेल्विक एरिया में लगा हो, तो इसको हम एनाटॉमिकल वेरिएशन कहते हैं। ये एक्टोपिक किडनी टर्म यूज करते हैं हम इसके लिए। तो जरूरी नहीं है कि अगर किडनी अलग जगह लगी हुई है तो वो किडनी खराब है। अगर आपका ओवरऑल किडनी का फंक्शन बिल्कुल ठीक है बट आपकी किडनी की जगह नीचे है, तो उसमें हम एक्टोपिक किडनी वर्ड यूज करते हैं, पर हम उसको ये नहीं कभी भी
ओपिनियन देते कि वो किडनी खराब है और उसको निकाल देना चाहिए। किडनी नॉर्मली जब बाय मतलब ये हम फिजियोलॉजिकल है कि अगर जब बर्थ के टाइम पे जो किडनी होती है वो नीचे से ऊपर की तरफ असेंड करती है, तो अगर ये असेंड होना रुक जाता है तो किडनी प्रीमेच्योरली अपने असली जगह से पे ना आके बीच रास्ते में रुक सकती है, उसको हम एक्टोपिक किडनी कहते हैं। जो आप पूछना चाहते हैं कि पेल्विक किडनी क्या है।